CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਹ 26 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 'ਚੋਂ 23 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਸਮੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ Politics, Organization and Disarmament, School of International Study, JNU. JNU ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਓਟੋ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਦ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੈਲੰਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਗਾਂਧੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਆਫ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋ-ਆਥਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਔਨ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਸਮਝੇ? ਸਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ यूरोप एक तरह से दुनिया को लीड कर रहा था। चाहे वो इनोवेशन हो, प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, वो नॉर्थ अटलांटिक जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप मिल के दुनिया कैसे चलेगी वो तय करते थे। अब पिछले करीब 30 या 40 साल से ये हिंद प्रशांत सागर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, दुनिया की जितनी भी तेज़ी से बदलती हुई लाइफस्टाइल है या आर्थिक वृद्धि दर है या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारा इन देशों में हो रहा है। उसकी वजह साफ है कि ये जो ग्लोबल ग्रोथ है उसका करीब 2/3 इस रीजन से आता है। और उसका कारण ये है कि यहाँ की मिडिल क्लास, दुनिया में मिडिल क्लास हमेशा बदलाव लाती है, चाहे वो कंजम्पशन में हो, प्रोडक्शन में हो, इनोवेशन में हो, नॉर्मल लाइफस्टाइल, फैशन, फूड, मिडिल क्लास उसमें बड़ा ज़्यादा एक तरह से योगदान करती है। तो इस खित्ते की मिडिल क्लास जो है वो दुनिया की 2/3 बनने वाली है 10-12 सालों। जनसंख्या के लिहाज से जनसंख्या अपने आप में दुनिया की 65%, 65% पॉपुलेशन जो वो इस रीजन में है। तो क्योंकि अब ये रीजन दुनिया में बदलाव लाने में, तरक्की लाने में, आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने में सबसे आगे है, इसलिए पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, खासकर यूरोप के जैसे कनाडा, तो उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो रहा है। वो उसको एंगेज करना चाहते हैं, उससे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पार्टिसिपेट करने से उनकी अपनी तरक्की भी लगातार बनी रहेगी। इसलिए बहुत से देशों ने, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सब ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इस तरह से जारी की। और ठीक, अब कनाडा ने भी उस तरह से अपनी इस तरह से एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इशू की है। और उसमें वो क्लेम करते हैं कि उनका 25,000
लंबा किलोमीटर लंबा जो कोस्ट है वो पैसिफिक ओशन के साथ है। उनकी करीब 20% जनसंख्या जो है वो हर 5 में कनेडियन का रिश्ता इंडो पैसिफिक में कोई फैमिली है, कोई रिश्तेदार है। और उनका जो सोशल कनेक्शन है इस सारे खित्ते के साथ, वो उसकी वजह से कनाडा को भी लगा कि हमें भी अब अपना क्या हमारी पॉलिसी है इसको लेकर वो सबके सामने साफ करनी चाहिए, और क्यों हम एंगेज होना चाहते हैं और कैसे एंगेज होना चाहते हैं इसको लेकर उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इशू किया। डॉक्टर साहब, इसको अगर इस तरह से समझा जाए कि क्या चीन का दुनिया के ऊपर बढ़ रहा प्रभाव एक चिंता पैदा करता है वेस्टर्न नेशंस के लिए? उसके पीछे भी ये जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वही उसका कारण है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि दुनिया का जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वो सारी दुनिया की अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है उसको तय करता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सेदार है। और इंडो पैसिफिक में चीन सबसे बड़ा देश है जो सबसे तेज़ी से बदलाव लाया है पिछले 30 या 40 साल में, और दुनिया की जो वृद्धि दर है उसमें करीब कभी कभी किसी साल में तो आधा हिस्सा चीन का होता है। 1990 में सोचें तो चीन की जो जीडीपी थी वो करीब 300 अरब डॉलर थी, 300 बिलियन डॉलर्स। आज वो 18 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं कि चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है। अब जब इकोनॉमी बड़ी हो जाती है तो उस देश के पास ये हैसियत हो जाती है कि वो जो करना चाहता है, जो हमेशा से करना चाहता था, वो आज कर सकता है। तो उसके चलते चीन का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके पास है, और इसकी वजह से बाकी सब देशों का अक्सर चीन सबसे बड़ा व्यापारी हिस्सेदार है। और व्यापार से बढ़कर वो फिर निवेश की तरफ जाता है, इन्वेस्ट करता है। तो ये पश्चिमी देश जो ताकतें हैं, जो 20वीं शताब्दी में सबसे बड़े ताकतवर देश थे, यूरोप के या अमेरिका या कनाडा, इनको लगता है कि इनकी जो इन्फ्लुएंस है इन सब दूसरे देशों में, क्योंकि चीन अब बड़ा व्यापारी बन गया है, बड़ा निवेशक बन गया, इन्वेस्टर बन गया, तो चीन की जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और क्या उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ने से इनकी इन्फ्लुएंस कम हो रही है, ये इनको कभी शक शुबा होता है कि शायद हमारी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी। और कुछ हद तक जो चीन के तौर तरीके हैं वो जाहिर हैं कि इनके तौर तरीकों से अलग हैं। जैसे ये सारे पश्चिमी देश हमेशा लोकतंत्र के नाम पर दुनिया भर के देशों में जाकर कभी कभी आक्रमण भी करते हैं, दे फाइट वॉर्स। हमने देखा गल्फ पूरे का सारा तो वो डेमोक्रेसी इम्पोज करना चाहते हैं वहाँ जाके कि हम ऐसे रहते हैं, आपको भी ऐसे ही रहना है। तो इसलिए इनके तौर तरीके चीन को अलग लगते हैं, चीन के तौर तरीके इनको अलग लगते हैं। अब फ़र्क यह है कि चीन के पास पहले हैसियत नहीं थी, आज हैसियत है, तो इसलिए इनको लगता है कि चीन को भी अपने तौर तरीकों में ढालने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए कि वो बेरोक टोक सब कुछ जैसे करना चाहता है वैसे ना करे। कुछ हद तक इसमें लॉजिक सही भी है कि कोई भी किसी भी एक देश को ये अलाउ नहीं हो जाना चाहिए कि वो जैसा करना चाहता है वैसे, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सोच। अब हिंदुस्तान भारत ही पूरी दुनिया पर अपनी थोपना चाहे सोच, तो वो भी ठीक नहीं है। कोई भी एक देश नहीं ऐसा करना चाहिए कि वो अपनी मर्जी कर सके। तो कुछ हद तक इनका कारण सही भी है कि भाई दुनिया जिस तरह से चली है, जिन तौर तरीक़ों से, जिन सिद्धांतों पर चली है, प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन जो बने हैं उस तरीके से होना चाहिए। तो इसलिए ये देश जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अलग अलग इन्होंने इशू की है, उनका काफ़ी हद तक ध्यान यहीं पर केंद्रित है कि चीन पर किस तरह से, चाहे उसको आप अंकुश मान लें या उसको सोशलाइजेशन कह दें उसकी, कि उसको अपने साथ ढालना है। तो उसमें ये मुझे लगता है कि जितने भी देशों की ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इशू हुई है, कनाडा की इशू हुई है, उसमें चीन का जो अचानक ये इतना राइज हुआ है वो बहुत बड़ा एक उसमें कारण है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा बता दिया कि 30-40 साल में 18 ट्रिलियन पे चले जाना एक इकॉनमी का अपने आप में, मेरे को लगता है इतनी ताकत कई बार संभालनी भी मुश्किल हो जाती है। एंड डेफिनेटली जैसे अभी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, सेफ गार्ड डिफेंडर एक NGO है, वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में इन्होंने अपने पुलिस स्टेशन खोल दिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बातें, हमारा सीसिस जो स्पाई एजेंसी है वो इस तरह के बयान अलेजिडली दे रहे हैं। खैर, इस तरफ अगर ना जाएँ, इंडो पैसिफिक रीजन पर रहें, वाकई में अगर कनाडा के संदर्भ में देखें, कनाडा अगर अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बाहर लेके आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा कनाडा के पास? क्या चीन के मुकाबले कोई ऐसा मुल्क है उस पूरे रीजन में जो वाकई चीन को टक्कर दे सके और एक मित्र देश बनकर कनाडा के साथ खड़ा हो सके? समीर जी, आपने बिल्कुल बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि
अब जैसे हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का विकास जो है, जो ग्रोथ है, वो इंडो पैसिफिक से आ रही है, इसलिए पूरे देशों को सोचना होगा कि अपनी तरक्की बनाने के लिए, अपनी सुरक्षा बनाने के लिए उस खित्ते से कैसे जुड़ें। अब 75% जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप कनाडा की है, व्यापार है, जो ट्रेड है, वो केवल एक देश से है, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब इंडो पैसिफिक की जो जीडीपी है, वो केवल आप देखो कि अगले 10 वर्षों में, 10 इयर्स में, वो अमेरिका से दुगनी होने वाली है। तो कनाडा का इंटरेस्ट कहाँ है? जाहिर है कि इंडो पैसिफिक में। तो कनाडा को उधर जुड़ना उसके अपने फायदे के लिए है, अपनी वजह से है। और उसमें जब वो देखता है कि इंडो पैसिफिक में कैसे जाए, तो आपने जैसे पहले अभी जिक्र किया हमने दोनों ने कि चीन, तो उसको लगता है कि एक तरह से चैलेंज है, चुनौती है, उसको कैसे संभालना है, कैसे सोशलाइज करना है। और कौन सा देश है? अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में खुद ही 27 बार इंडिया का मेंशन है। जो कनाडा की स्ट्रेटजी में 27 बार इंडिया का जिक्र है उसमें। और उन्होंने उसमें लिखा है कि चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पर हो, भारत की जो बढ़ती हुई साख है, या लीडरशिप है, या विजिबिलिटी है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क बनने वाला है, उस सब के चलते उन्होंने लिखा है स्ट्रेटजी में कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी इन्फ्लुएंस, जिसकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडो पैसिफिक के ट्रांसफॉर्मेशन में, ग्रोथ में, वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली है। इसलिए चाइना को वो अपना एक कहते हैं ग्लोबली डिसरप्टिंग कंट्री है, और हिंदुस्तान को कहते हैं कि वो उनका क्रिटिकल पार्टनर है। भारत को वो क्रिटिकल पार्टनर बताते हैं, और उनको लगता है कि खासकर देखो, भारत ऐसा देश है कि उसमें अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आ रहा है। जैसे चीन में आया था, वैसे अब भारत में भी वैसे बदलाव आ रहा है। और जब ऐसा बदलाव आता है तो चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, फूड हो, फ्यूल हो, सबकी डिमांड बढ़ती है। और इस वक्त कनाडा को लगता है कि वहाँ डिमांड बढ़ रही है और इनके पास एक्सपर्टीज़ है और एनर्जी भी है। तो जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, वो चीन के साथ बन ही नहीं सकता, चाहे चीन दोस्त भी हो, क्योंकि वो चीन बहुत आगे जा चुका है। भारत अब उस जगह पे है जहाँ से वो छलांग लगाना चाहता है। तो ये जो तालमेल है कि इनके पास एक्सपर्टीज़ है, एनर्जी है, वो तालमेल लेके इनको लगता है कि कई सेक्टर्स में भारत के साथ जुड़ के भारत को भी फ़ायदा होगा, कनाडा को भी फ़ायदा होगा। इसीलिए कनाडा जो है वो अब देखो, हर देश के जो यंग युवा हैं, यूथ है, यूथ फ्यूचर होता है किसी भी देश का। अब हिंदुस्तान का फ्यूचर कहाँ जा रहा है? कनाडा जा रहा है। हिंदुस्तान के बच्चे अब 2018 से कनाडा में सबसे ज़्यादा नंबर जो फॉरेन स्टूडेंट्स का है 2018 से इंडिया से आ रहा है। तो इंडिया के लिए भी फ़ायदा है कि यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ वापस जाते हैं। पर कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तो बहुत कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो जो तालमेल, जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, इनको लगता है कनाडा में, जैसे लिखा ही गया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, वो भारत के साथ बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। इसलिए आपने जो पूछा कि कौन से मुल्क से जुड़ेंगे, तो उसमें लिखा ही है कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ बड़ी तेज़ी से अपना योगदान बनाए। मैं डॉक्टर साहब इसलिए भी इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया भी है, उसमें जापान भी है, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जापान भी फर्स्ट टॉप 5 जो जीडीपीज़ हैं उनमें आता है, और इंडिया भी टॉप 5 में आता है, 5 और 6 में रहता है। और आज की डेट में अगर चीन बेशक सेकंड बिगेस्ट जीडीपी है आफ्टर यूएस, लेकिन पहली 5 की अगर बात करें तो 3 तो उसमें से इंडो पैसिफिक रीजन में। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान तीसरी और इंडिया 5वीं। तो उसमें फ़र्क ये हो जाता है कि इंडो पैसिफिक में ठीक है, चीन हमने पहले कह दिया कि वो तो क्योंकि चुनौती के तौर पे देख रहे हैं उसको, और उसके अलावा चीन की इकॉनमी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है, उनकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, और उसका पहले से ही पूरे पश्चिमी देशों के साथ बड़ा अच्छा तालमेल है टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर। तो वहाँ कनाडा को उतना ज़्यादा कंपेटिटिवनेस नहीं उसको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा योगदान नहीं कर सकते। मेरे को ये भी लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं किसी एक मुल्क के साथ कंपटीशन पे नहीं है, वो पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन। बिल्कुल, वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना जो एक कहते हैं ना स्वामित्व, वो हासिल करना चाहता है कहीं ना कहीं। नहीं, उसमें ये है कि कनाडा का जैसे हमने कहा कि 75% व्यापार अमेरिका के साथ है, तो वैसे उसके साथ साथ उनका
पॉलिटिकल रिलेशनशिप भी बहुत क्लोज है। हम्म, तो अमेरिका को लगता है कि उसके लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती है। तो कुछ हद तक मुझे लगता है उसकी भी इन्फ्लुएंस है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस। अमेरिकन इन्फ्लुएंस है इस सोच में कि कनाडा को भी लगता है कि चीन, हालांकि जितनी तीखी आवाज़ से यूएस बात करता है चीन की, उतनी आक्रामक रुख नहीं है इधर, उतना एग्रेसिव रुख नहीं है कनाडा का। पर हम जो बात कह रहे थे कि जापान भी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर जापान को हम एडवांस्ड तरक्कीशुदा मुल्क मानते हैं। वैसे कोरिया, साउथ कोरिया भी तरक्कीशुदा मुल्क है, तो वहाँ जो कम्प्लीमेंटैरिटी कनाडा की है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो जो इंडिया में मार्केट है, इंडिया में कंजम्पशन की कैपेसिटी है, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का डेफिसिट है, वहाँ $2 बिलियन का, 2 ट्रिलियन डॉलर का, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में बनाई जा सकती है, इतनी कैपेसिटी हिंदुस्तान में आज है। तो इन्वेस्ट जो करेंगे मुल्क, उनमें कनाडा भी एक मुल्क हो सकता है कि वो वहाँ जाके इन्वेस्ट करे, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलेंगे, भारत को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इसकी कनाडा की दोस्ती अमेरिका से बहुत अच्छी है, उसके चलते जापान कोरिया से भी बड़ी अच्छी है, पर जो तालमेल है, जो कम्प्लीमेंटैरिटी है, वो सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान से है। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा, भारत जो है बहुत बड़ी एक तरह से जनसंख्या का देश है, तो वहाँ जो चेंज ला सकते हैं कनाडा के कंट्रीब्यूशन से, वो कनाडा को लगता है कि वो बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ सकता है। सो मतलब फोकस जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जापान और साउथ कोरिया, या और मेरे ख्याल से जो क्वाड की बात आती है और उस पूरे रीजन में, चाहे ऑस्ट्रेलिया तक भी हम चले जाएं, इन सभी का एक गठजोड़ भी बन रहा है। इसको इस लिहाज से कहाँ देखा जाएगा अगर पैसिफिक रीजन की मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, चीन का ताइवान के ऊपर जिस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इनफैक्ट अभी कल अरुणाचल प्रदेश में हमने प्रभाव देखा। तो इस पूरे सिनेरियो को हम किस तरह से देखते हैं कि क्या चीन अपने सारे फ्रंट खोल के बैठा है दुनिया के लिए? समीर जी, पहली बात तो ये कि जब मुल्कों में बड़ी तेज़ी से बदलाव आता है, खासकर तरक्की आती है बड़ी तेज़ी से, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल सारे एरियाज़ में हो जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशन हो, मिलिट्री रिलेशन हो। चीन और भारत की जो आपने जिक्र किया कि हाँ, पिछले 9 दिसंबर को कुछ भिड़ंत हुई। पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया के दूसरे और तीसरे डिफेंस स्पेंडर्स जो हैं वो चीन और भारत हैं। बहुत बड़ी उनके पास शक्तिशाली सेनाएं हैं, न्यूक्लियर वेपन पावर है। और उसके बावजूद भी आप देखते हो कि उनके सैनिक मुठभेड़, धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, हाथों से लड़ रहे हैं, हाथों से, डंडों से लड़ रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें आप उनकी रेस्ट्रेन को नज़रअंदाज मत करें कि इतनी बड़ी ताकतें होते वक्त भी जब आपस में कुछ मतभेद हो जाता है, बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, नहीं पता लगता है कि कौन कहाँ जा रहा है, उसमें भी रेस्ट्रेन मेंटेन करते हैं वो। मैक्सिमम पथराव हो जाता है, 2020 में कुछ हादसे भी हुए थे, पर ज़्यादातर रेस्ट्रेन रहता है। और ठीक वैसे ही दूसरे इधर जो मुल्क हैं उनमें भी आपस में अब चीन सबसे तेज़ी से बढ़ा है, तो वो चाहता है कि वो जैसे उसकी सोच थी, उसको यहाँ लगता है उसकी सीमा वो ले ले, पर दूसरे देश देने नहीं देंगे ना। इतना आसान नहीं है कि आज आप सीमा अपनी मर्जी से बना लो, वो पॉसिबल है नहीं। तो उस तरक्की की वजह से मुझे लगता है चैलेंज बढ़ गए। बहुत से देशों ने, भारत, चीन ने भी कुछ तरीके बनाए थे जिसको हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कहते हैं कि बॉर्डर पे शांति बनाए रखें। पर क्योंकि बदलाव इतनी तेज़ी से आया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया बॉर्डर पे, दोनों तरफ सड़कें बन गई हैं, वो सेनाएं बहुत जल्दी से आगे आ सकती हैं, पहले नहीं इतनी जल्दी से आ सकती थी। तो और फ्रीक्वेंटली आपस में मुलाकात हो जाती है, तो वो सिंपली इसलिए क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है बॉर्डर पे। पहले आपको यहाँ 4 दिन लगने थे आगे बॉर्डर तक जाने में, अब वो 4 घंटे में आप पहुँच जाते हो। तो वो आपस में भिड़ंत जो है वो बारी फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत बढ़ गई। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो कभी कभी पेशेंस खो देते हैं सैनिक, गुस्सा आ जाता है। तो उसके चलते मुझे लगता है दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, और चीन के बाकी देशों की भी ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से नए माहौल में जो है वो तालमेल बनाया जाए। अच्छा, इंडिया को लेकर क्या चीन को खतरा किसी किस्म का महसूस होता है? क्योंकि ख़ास तौर से जब से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू हुआ, खुद इंडिया एक बहुत बड़ा व्यापार बन के बाहर आया। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी मार्केट जो है
वो इन गरीब मुल्कों या अंडर डेवलप कंट्रीज़ को रखा हुआ था, चाहे इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहीं पे सारे इनके प्रोडक्ट्स जो है बनते हैं और वापस अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में आके बिकते हैं। तो क्या इंडिया का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, क्या वो एक आप उसको एक अच्छा एक उदाहरण देख सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में? देखो, हमने अभी एग्जांपल दी चीन की। चीन ने भी यही किया, चीन बिकेम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पर उसमें फ़र्क ये है कि चीन भी आज कोशिश कर रहा है कि वो मेक इन चाइना से मेड इन चाइना, ब्रांड चाइना पर जाए। भारत में भी वही होना है, पहले आप आके कुछ बनाएंगे, फिर हम आपके साथ हिस्सेदारी करके कुछ बनाएंगे, फिर हम खुद कुछ बनाएंगे, तो वो मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया फिर ब्रांड इंडिया में चला जाएगा। तो वो एक यूजुअल प्रोसेस है कि आप पहले अट्रैक्टिव मार्केट बन जाते हो, आप फैक्ट्री बन जाते हो, फिर अपने ब्रांड बनाने शुरू करते हो। हिंदुस्तान में फ़र्क केवल ये है कि उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनका अंदरूनी खपत बहुत ज़्यादा है। हम अपने लोगों के लिए ही प्रोड्यूस करते रहें अच्छा, तो उसी से हमारी बहुत तेज़ तरक्की हो जाएगी आगे। क्योंकि आप देखो कि 1.4 बिलियन दुनिया के लोग केवल एक देश में, भारत में रहते हैं, तो अंदरूनी मार्केट बड़ी अच्छी है, उसकी ताकत अपने लिए भी है और वो अट्रैक्टिव है पूरी दुनिया के लिए कि आप एक छोटी सी पेन भी बेचेंगे तो इतने ज़्यादा पेन बिक जाएंगे कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर उसके साथ साथ ये पश्चिमी जो ताकतें हैं, जैसे अमेरिका, यूरोपियन है, कनाडा है, क्योंकि ये चीन के प्रति थोड़ा सा इनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए कभी कभी भारत के साथ वो इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं कि वो क्या चीन को काउंटर करने में भारत उनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि भारत एक मिलिट्री पावर भी स्ट्रांग है और चीन के सीमा पर है, चीन के बॉर्डर पे है। तो यदि भारत को अपने साथ जोड़ेंगे तो शायद चीन को रोक के रखने में भी इनको शायद थोड़ा सा सहूलियत होगी, इनको ये लगता है। पर भारत ने बार बार साफ कर दिया कि चीन या किसी दूसरे मुल्क के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो हम खुद देख लेंगे। हम किसी दूसरे देश पर, भारत ने बार बार कहा कि हम निर्भर नहीं हैं। हाँ, आप दोस्ती हमसे रखिए, तालमेल बनाइए, हिस्सेदारी बनाइए, पर अपना जो हमारे चैलेंज हैं भारत उनको कैसे डील करेगा। अभी यूक्रेन वॉर में आपने देखा कि बार बार भारत ने कहा कि जो हमारे अपना नेशनल इंटरेस्ट है, एस जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली इसको डिफाइन कर दिया, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, वो तय करेगा कि हम क्या करेंगे। दूसरे मुल्कों को वो अच्छा लगे ना अच्छा लगे, वो उनकी परेशानी है। तो क्या भारत आने वाले समय में, अगर क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अगर आप, जैसे आपने कहा कि 27 टाइम्स इंडिया का जिक्र आता है, और ये कनाडा की गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है जिसमें 27 टाइम्स इंडिया का जिक्र आ रहा है। इंडिया को $4 ट्रिलियन तक की उन्होंने एक जीडीपी तक की बात की है। आईएमएफ की रिपोर्टिंग आ रही है कि इन 2023-2024 सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ पोस्ट पेंडेमिक की होगी, फास्टेस्ट ग्रोथ, वो इंडिया में होगी। आईएमएफ की ये फोरकास्ट है। तो इन सारी चीज़ों में अगर हम देखें कि आज कनाडा के रिलेशन सऊदी अरेबिया से या चीन से, रशिया से इतने अच्छे नहीं हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो भारत है ये एक ऐसा देश बन के सामने आए जिसको नकारना, जिसको इग्नोर करना शायद एक असंभव सी बात आने वाले समय में लगनी शुरू हो? ये तो हो चुका है, ये होने वाला नहीं, ये हो चुका है कि भारत को नकारना बहुत मुश्किल है। और यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि भारत ने अपनी जो सोच है, अपनी वो जो नीति है, पॉलिसी है, उस पे वो अडिग खड़ा रहा है। चीन के साथ 2020 में जो हादसा हुआ था उसको लेकर भी साफ है कि भारत चीन के आगे भी खड़ा है, उससे डर के पीछे नहीं हट रहा है। तो ये स्टैंडिंग अप टू चाइना या स्टैंडिंग अप टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉलोइंग इंडियाज़ ऑन नेशनल इंटरेस्ट वाली जो सोच है वो पहले ही सामने आ चुकी है। और आपने जैसे अभी जिक्र किया कि जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उनकी जो बात करने का तरीका है उसमें बदलाव नज़र आता है, एक असर्शन नज़र आती है। और हमेशा से आप देखो कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जो 2014 में इलेक्शन लड़े थे, तभी उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि शायद हम आज तक हमारी जो हैसियत है उससे कम हम अपने आपको दिखाते रहे हैं, आंकते रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को हमें जो है उतना तो असर्ट करना ही चाहिए। तो वो नीति आज धीरे धीरे सामने आ रही है, उसकी रिकग्निशन भी हो रही है। अब देखो कि एक हद तक अमेरिका ने नाराज़गी जाहिर की कि हम क्यों रूस से तेल मंगा रहे हैं, पर अब वो समझते हैं कि भाई भारत अपने जो राष्ट्र हित हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगा, अपनी नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करेगा। किसी भी, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, कोई दूसरा देश हो, उसका पिछलग्गू बनने वाला देश नहीं है। वो बहुत बड़ा देश है और अपने आप जो करेगा वो सोच समझ के करेगा। और ये भी बात है कि भारत का जो तौर तरीका है वो इन पश्चिमी ताकतों को ज़्यादा
अपने जैसा लगता है, जैसे बहुत बड़ी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, फेयर प्ले है, ये सब चीज़ें उनको लगता है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हमारे सिस्टम हैं, सोच हैं, तरीके हैं, वो उनको क्योंकि चीन से हमेशा कंपैरिजन होता रहता है, इसलिए उनको लगता है कि ये ज़्यादा उनके साथ तालमेल बनाने में पॉसिबल है यहाँ। और उसकी साफ ये एक एग्जांपल है कि जबकि आज भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर आंकी जाती है, पर इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में आपने जैसे कहा कि 4 ट्रिलियन डॉलर कहा गया, ऑलरेडी कहा गया। तो क्योंकि इनको इस तरह से उम्मीद है, और 2025 में वो 5 ट्रिलियन पहुंचने की अपना भारत का टारगेट है कि वहाँ पहुंचनी चाहिए। और उसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है, एक तरह से लीप फ्रॉगिंग जो कहते हैं ना, कि हिंदुस्तान को ये फायदा है कि उनको 100 साल नहीं लगेंगे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, उनको जल्दी मौका मिल जाएगा। उसमें 5 ट्रिलियन जो इकॉनमी बनेगी, उसमें 1 ट्रिलियन केवल डिजिटल टेक्नोलॉजीज, 20% उसका। तो अब देखें कि वो जो एडवांसमेंट है वो लीप फ्रॉगिंग, फास्ट फॉरवर्ड वाले पेस पे चल रही है। और इन देशों को लगता है कि ठीक है, भारत से जुड़ने में यहाँ इनका भी फायदा और नेचुरली भारत को भी फायदा। अच्छा, डेफिनेटली भारत से जुड़ने का फ़ायदा भी हम बात कर रहे हैं। चाहे जापान आज एक है तो डेवलप कंट्री, और एज़ फार एज जीडीपी इज़ कंसर्न्ड सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन सुस्त मुल्क है देखने में, अगर बात करें दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। साउथ कोरिया है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, जिसमें चाइना का भी रोल आता है और बाकी कंट्रीज़ का भी रोल आता है, इसके चैलेंज क्या हैं? इस पूरे रीजन के इसके अपने चैलेंज क्या हैं? इसके ऊपर उम्मीद तो जताई जा रही है, जैसे आपने कहा कि हर मुल्क अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पेश कर देता है और बढ़ना चाहता है आगे। इनफैक्ट कनाडा से मैं थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी दे रहा था कि जो क्वेबेक की सीसीपी है, कैनेडियन पेंशन प्लान, उन्होंने जाके इन्वेस्ट किया हमारे एनएचएआई में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, अगर आप वहाँ पे टोल टैक्स बंद करवाते हो तो उसका जो लॉस है वो कनाडा की कंपनी को हो रहा है। तो ये समझने की थोड़ी सी बात है, इसके ऊपर रिसर्च की भी ज़रूरत है। लेकिन इंडो पैसिफिक उस रीजन के अपने चैलेंजेस क्या हैं जिससे वो पार पाने में अभी लगे हुए हैं? पहले तो आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया समीर, के वो जो कनाडा पेंशन फंड है, 55 बिलियन डॉलर उसके भारत में इन्वेस्टेड है। तो आप देखें कि वो स्टेक्स जो हैं, जो इनका इंटरेस्ट है, इनका दिलचस्पी है कि भारत में क्या हो रहा है, वो नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात आपने समीर जो कही कि चुनौतियां क्या हैं पूरे इंडो पैसिफिक में, बहुत सी चुनौतियां हैं, क्योंकि कोई भी क्षेत्र, देश या मुल्क या कोई परिवार या कोई इंसान बड़ी तेज़ी से वो रिच हो जाता है ना, तो बहुत सी नई नई चीज़ें सामने आती हैं जो पहले सामने नहीं आई थी। सिंपल सबसे चीज़ कहें तो यह है कि जब व्यापार बढ़ता है तो अच्छी बात है, व्यापार बढ़ता है, और व्यापार बढ़ने से कुछ नई अड़चनें भी सामने आती हैं कि भाई आपको ये चीज़ पसंद नहीं, आपके तरीके से नहीं हो रही, कोई मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा, या कोई क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा हो गया है, या रेगुलेशन बदल दिया आपने। वो चीज़ें पहले थी नहीं क्योंकि व्यापार ही नहीं था। तो अब भारत चीन का व्यापार 125 बिलियन डॉलर है, तो जाहिर है कि कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी। अब इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में ही आप देखें कि जिक्र हुआ है साफ तरह से कि कुछ कुछ जो सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, चाहे वो कि म्यांमार में क्या हो रहा है, चीन के अंदर क्या हो रहा है, भारत चीन में क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, वो जब कनाडा जाके वहाँ निवेश करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसको ये भी नज़र आने लगता है कि वहाँ लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, या क्या नई प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं, क्या कनेडियन जो लोग वहाँ जाकर रहेंगे, निवेश करेंगे, व्यापार करेंगे, उनकी सुरक्षा है या नहीं है। तो ये सब चुनौतियाँ हैं वहाँ के। कुछ तो बदलाव से चुनौतियाँ आ रही हैं, कुछ पहले की चुनौतियाँ अब और सामने आने लगी। मैंने जैसे कहा कि चीन के पास आज हैसियत है, इसलिए वो जहाँ जहाँ सीमा बढ़ाना चाहता है वो कोशिश कर रहा है कि मैं बढ़ा लूँ, क्योंकि आज ताकत है, जब ताकत नहीं थी तो चुप था। तो कुछ तो पुरानी वाली चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं और कुछ नई चुनौतियां बन रही हैं जो पहले थी ही नहीं। और इन सब चुनौतियों के सामने आने से कनाडा जो अब वहाँ ज़्यादा जुड़ना चाहता है, जो पहले मैंने कहा 75% उसका व्यापार केवल एक देश से है, और हो सकता है फ्यूचर में इंडो पैसिफिक से ज़्यादा इनका व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो नेचुरली कनाडा का जो ध्यान है, जो इंटरेस्ट है कि वहाँ क्या चुनौतियाँ हैं, वो और सामने बढ़कर आता है। इसीलिए कनाडा आज बात कर रहा है अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में कि वो अपनी सैनिक शक्ति वहाँ ज़्यादा बढ़ाएगा, इंटेलिजेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। एक 5 आईज का इनिशिएटिव है, 5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के कुछ काम करती हैं, उसमें करेगा। अपना लोगों का पीपल टू पीपल रिलेशन कैसे बढ़ाएगा, एक्सचेंजेस कैसे बढ़ाएगा। तो वो सब, चाहे वो हार्डकोर मिलिट्री का यूज़ करना हो, चाहे वो अपनी दोस्ती गुडविल बढ़ाने का तरीके हों, कल्चरल एक्सचेंज करके, एजुकेशनल एकेडमिक एक्सचेंज करके,
बहुत से तरीक़ों से कनाडा ने इसमें ये भी कहा कि वो कैसे वहाँ अपना जो तालमेल बढ़ाएगा, ताकि जो वहाँ जुड़ना है कनाडा का, जो इनेविटेबल है, मैं शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि वो इनेविटेबल है कि कनाडा आने वाले दशकों में इंडो पैसिफिक से नेचुरली ज़्यादा जुड़ता जाएगा और जुड़ना होगा उसको। तो उस जुड़ने में जो खतरे हैं वो कम हों, फायदे हैं वो ज़्यादा हों। तो ये टाइम पे इन्वेस्ट भी करेंगे उस जगह पे। तो वो उस नज़रिए से न केवल सैनिक शक्ति बढ़ाएगा वहाँ यूएन पीस कीपिंग में या दूसरे तरीके से, पर वो लोगों का जो तालमेल है, जो एक्सचेंज है, क्योंकि ये जितनी भी हमने कहा कि एक्सपर्टीज़ यहाँ बेहतर है। अब सिंपल बात है, आपने जो कहा कि साउथ कोरिया या जापान है, वो सुस्त नहीं है। वो मैं ये उसको थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि जो एक लेवल पर पहुँच गया ना उनका विकास, जो उनकी तरक्की, अब जैसे कनाडा का 52,000 पर कैपिटा जीडीपी है, हिंदुस्तान की 2,000 है। तो हिंदुस्तान को, इंडिया को बहुत आगे जाना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है आगे बढ़ने की। तो इसलिए भी जो कनाडा का तालमेल जापान के साथ बनता है वो एक तरह से सीमित है, क्योंकि वो एक लेवल पर सैचुरेट पहुंच जाते हैं। अब कितना और तरक्की करेंगे, जितनी तरक्की हो सकती थी हो गई। अब वहाँ वो उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो एक स्कूल में बच्चा जाता है ना, तो 65 से 95 तेज़ी से पहुँच जाता है, पर 95 से 97% लाने में बड़ी उसको मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इन देशों को आगे जाने के लिए, बहुत तरक्की करने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसलिए स्पेस कम हो जाती है। भारत जैसा जो अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है और दुनिया भर में जो तकनीक अवेलेबल हैं, जो तरीके अवेलेबल हैं, उनको अडॉप्ट करके बढ़ सकता है बड़ी तेज़ी से आगे, वहाँ स्पेस बहुत है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारत के साथ बहुत सारे, केवल कनाडा नहीं, दूसरे देश भी बहुत तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, और उनको लगता है कि यहाँ निवेश करेंगे तो उनका अपना भी प्रॉफिट बढ़ेगा और जाहिर है कि तालमेल में भारत का भी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है और ब्रेक लेकर फिर वापस आते हैं और आपसे थोड़ी सी और 2-3 सवाल हैं डेफिनेटली करेंगे। हुणे वापस आने गलबात चलती रहेगी। डॉक्टर स्वर्ण सिंह साहब मेरे नाल ने, जो कि विजिटिंग प्रोफैसर ने UBC दे और JNU दे विच इस वेले डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफैसर ने और सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्ममेंट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी दे विच ये अपनी सेवावां दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक दे विच भी तुहाडे नाल जिक्र कर रहा सी कि ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜੀ GDP ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ? 2-3 चीज़ें बड़ी जल्दी से मैं बताऊंगा। एक तो ये कि तरक्की शुरू होने से पहले वहाँ एक कल्चरल रिवोल्यूशन आया था चीन में, जो बहुत उथल पुथल हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोग मरे थे माओ त्से-तुंग के टाइम पे। और उतना जब उथल पुथल होती है तो अगले जो आने वाले जो नेता हैं उनको मौका मिलता है कि कुछ बोल्ड इनिशिएटिव लें, कुछ बदल दें पूरी तरह से, और जनसंख्या उनको अलाउ करती है कि आप बदल दें सब कुछ। तो चीन जो पहले एक कम्युनिस्ट बंद कंट्री था, केवल कम्युनिस्ट देशों से जुड़ना चाहता था, उसने अपनी इकॉनमी को खोलना शुरू किया। और वहाँ के लोगों के लिए ये पहली बार था, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको अपने आप प्राइवेट मनी बनाने का, वहाँ किसी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी मनी नहीं था, कम्युनिस्ट कंट्री, सब स्टेट का होता था। तो जब पहली बार दुनिया में ये मौका उनको नज़र आया कि वो अपने लिए कमा सकते हैं, कुछ हद तक इंडिया में भी ये 1990s में आया, तो उसमें जो जुनून था कि हम कुछ कर गुजरें, वो बड़ा अलग था। दूसरा, उसके साथ ये जुनून इसलिए ताकतवर हो गया क्योंकि जितने भी ये डेवलप्ड कंट्री थे, इन्होंने सब ने देखा कि चीन में जो, चाहे वो लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ज़मीन है, जितनी भी चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत ही सस्ती हैं। तो पूरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने ही वहाँ जाके इन्वेस्ट किया। इन्होंने चीन को सपोर्ट किया इन दैट सेंस कि चीन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाने में, ये सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजी तो इनकी वहाँ गई है। कोई भी टेक्नोलॉजी आप देख लें, वो प्रोडक्शन सारी चीन में होता है। उसकी वजह से हाँ, चीन सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो गया, वहाँ कार्बन फुटप्रिंट उनका बढ़ गया, सोशल इंस्टेबिलिटी हो गई, वहाँ उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा उसका।
पर ये सारा उनकी तरक्की पश्चिमी देशों के उत्पादन करने के लिए ही हुई इतनी तेज़ी से। अब दिक्कत यह है कि चीन अब ना केवल फैक्ट्री है, वो अपने ब्रांड बनाना शुरू हो गया है, वो अब इन देशों को कंपटीशन देना शुरू हो गया है। दिक्कत तब शुरू हुई और इन देशों की सपोर्ट से ही और अपने जुनून से कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट मनी बना सकते हैं, वो उसकी वजह से उनको अचानक लगा कि वो 18 घंटे काम करके अपने पैसे कमा सकते हैं और इकोनॉमी उनकी बहुत आगे बढ़ गई। डॉक्टर साहब, क्या ये कल्चरल रेवोल्यूशन इंडिया में भी देखने को मिल रही है कि अगर वाकई इंडिया उस लिहाज से तरक्की करना चाहता है या कि ये एक अनएथिकल अप्रोच है? एक तो ये कि हम रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में हमेशा फ़र्क करते हैं। यदि भारत में भी मान लो कि इस तरह से अचानक सारे दरवाजे खुल जाएं और हमारा चीन में करीब 40 साल तक 10% ग्रोथ रेट रहा है, भारत में ऐसा नहीं रहा है। भारत में कभी 6%, कभी 8, कभी 9, फिर 2 पर चला जाता, फिर 4 पे चला जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी बड़ी अलग है। चीन में एक पार्टी, एक गुट, एक आदमी का जो है पूरा दबदबा है, वो जो तय करता है वो हो जाता है, चाहे वो ठीक तरीके से करे या गलत रास्ते चले। गलत रास्ते चलेगा तो खराब हो जाएगा। भारत में पॉलिटिक्स बड़ी अलग है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े ज़बरदस्त हैं। आप देखें सेंटर में गवर्नमेंट किसी और की है तो प्रोविंसेस में किसी और की है, वो आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते हैं, इसलिए जो आर्थिक ग्रोथ रेट है वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसकी वजह से, अंकुश की वजह से रेवोल्यूशन नहीं पर एवोल्यूशन ज़रूर हुई है। तो एक तरह से जो कल्चरल एवोल्यूशन भारत का हो रहा है, जो आज के जो युवा भारत के लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, उनका दुनिया भर में घूमने का, जाके काम करने का, नई नई चीज़ें, मोस्टली सीईओ सारे जो हैं वो बड़ी आईटी कंपनीज के। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ अलाउ करती है कि कोई भी आगे तक जा सकता है। वहाँ सारे हिंदुस्तानी भारतीय लोग देखो सब जगह सीईओ बने हुए हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में एक तरह से कल्चरल एवोल्यूशन है, उसको रेवोल्यूशन नहीं कहेंगे, वो झटके से नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे बदलाव आया है। 10, 15, 20 सालों में जो पूरा छवि है भारत की वो बदल गई है मुझे लगता है। हाँ, कुछ हमारी चिंताएं भी हैं भारत में, कुछ चुनौतियां भी भारत में, ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भारत में, पर मुल्क जो देश को एक देश की तरफ से आप देखें तो आज उसकी 3.2 ट्रिलियन इकॉनमी है, बढ़ता हुआ व्यापार है, विजिबिलिटी बहुत हो गई है भारतीयों की दुनिया भर में, चाहे वो नेता हों, चाहे वो सीईओज हों। तो उसके चलते मुझे लगता है कि जो बदलाव का तरीका है भारत में वो अलग है और मुझे लगता है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में बहुत अलग तरीके से बढ़ती हुई नजर आती है। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, लेकिन उससे पहले आपका 1 मिनट का एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है। कनाडा की जो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, वंस अगेन गोइंग बैक टू ऑन दिस वन, इसको अगर 1 मिनट में आपने सम अप करना हो तो क्या विशेषता है? क्या वाकई ये स्ट्रेटजी जो है वो काम करेगी जो कनाडा ने बनाई है? ये वाकई कनाडा के हितों के लिए, कनाडा के फ़ायदे के लिए रहेगी? स्ट्रेटजी में साफ कहा गया है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में इंडो पैसिफिक जो है वहीं दुनिया का आर्थिक वृद्धि दर है, वहीं बदलाव है। इसलिए कनाडा को भी, यदि इंडो पैसिफिक की जीडीपी मैंने कहा कि अगले 10 सालों में यूएस से दुगनी होने वाली है, तो कनाडा का व्यापार यूएस से हटकर वहाँ बदलना हो, वहाँ उस तरफ झुकाव उसका बनना ही बनना है। दूसरी बात जो कनाडा साफ तौर पे कहता है कि आज कहाँ कहाँ कनाडा किस किस तरह से पार्टनरशिप, हिस्सेदारी बना सकता है, ताकि वो आपसी तालमेल लगातार बने और आगे तक बढ़े। ना केवल कनाडा वहाँ से फ़ायदा उठाए, पर वो मुल्कों को भी भारत से, कनाडा से फ़ायदा हो। तो ये बदलाव की जो हवा है वो इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में साफ नज़र आती है और कनाडा उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और ये भी दिखाना चाहता है कि किस तरह से कनाडा जब वहाँ जाएगा तो उन देशों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ख़ासकर कनाडा का जो एक्सपर्टीज़ है वो वहाँ जाकर उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहता है। वहाँ मार्केट्स हैं, वहाँ स्पेस है, टेक्नोलॉजी है, ये सब मुझे लगता है कि तालमेल जो है, कम्प्लीमेंटैरिटी कैसे है कनाडा की इंडो पैसिफिक के लोगों से, देशों से, और ख़ासकर वो लोगों से जुड़ना चाहे, उसमें बड़ा पीपल टू पीपल की बात करी है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। तो देशों की तो तालमेल बनेगी, पर कनाडा लोगों का भी तालमेल बनाना चाहता है। और इसीलिए आखिरी बात ये कि हर 5वें कनेडियन का रिश्ता इंडो पैसिफिक में है, परिवार इंडो पैसिफिक में है। तो वो तालमेल बनाना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है और आज वो पॉसिबल भी है। समय की ज़रूरत है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया, हमसे बातचीत की, और डेफिनेटली कुछ और विषयों के ऊपर भी हम चाहेंगे कि आपका समय इसी तरह से हम लें। आप बहुत बिजी होते हैं और आपसे बहुत देर की बात चल रही थी, तो डेफिनेटली वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम रेडियो शेर पंजाब, फ्रॉम द समीर कौशल शो, कि आप आए और आके आपने हमें ये सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।